What are the chances of becoming the absolute best in an exam where 12 lakh students compete? Almost zero. To be exact, 0.000008%. And yet, one person did it. How? Luck, talent, or something entirely different. जेईई एडवांस के आए नतीजों में कोटा के छात्र हैं वेद लाहौटी, जिन्होंने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। He is Ved Lahoti, the topper of JEE Advanced 2024. मैंने घंटे देखकर कभी पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई की। He has broken all the records of the highest marks till date by scoring 355 marks out of 360. Welcome to Toppers Talk Season 2 Episode 1. Today we will be meeting Vedant Lahoti, AIR1 JEE Advanced 2024. Today we will be understanding Vedant's toughest moments, his game-changing mindset, the real story behind Rank 1. देखो, आपको AIR1 की वीडियोस ना बहुत सारे चैनल पे मिल जाएंगे, but I want this to be actually helpful, and it will only be helpful if you take notes from this video and then convert these notes to some actionable steps in your preparation. तभी इस वीडियो को देखने का कोई फायदा है, नहीं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो। अगर अभी आप नोट्स नहीं बना सकते तो बाद में आराम से नोटबुक लेके ही वीडियो देखो, बिकॉज एल्स ये वीडियो कोई काम का नहीं। आई एम लिटरली बीइंग ऑनेस्ट एंड ब्लंट हियर, बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भी वैसे ही बैठे हो, मुझे पता है मेरे इतने बोलने के बाद भी बहुत लोग वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, बट यार थोड़े से एफर्ट डाल दो, मैं बता रहा हूँ बहुत फायदे में रहोगे। यही तो मूवमेंट है, जब तुम एवरेज से बेटर स्टूडेंट बनोगे तो डालो एफर्ट्स, ठीक है? डाल दो यार, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? लाओ नोट्स तुम्हारे, ले आए नोट्स। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एक्चुअल में। So hello everyone, today we have Ved Lahoti with us who cracked JEE Advanced 2024 with AIR1. So hey Ved, welcome to our channel and we just want a basic introduction of yours from you. So can you start? I am Ved Lahoti and I am from Indore and I studied, I completed my JEE preparation from Kota and currently I am pursuing computer science in IIT Bombay. Okay, that is so sweet of you. So when did you started IIT JEE preparation? I started IIT JEE preparation about 2 to 3 years ago. Like in class 10th, I slightly started it, but was not very serious about it, and my full-fledged preparation started from class 11th. Okay. So what was your daily schedule when you were preparing for JEE? Like my daily schedule was like I used to wake up at around 6 to 7 and then I went to the classes for the preparation, and after that first I used to revise everything which was taught in class and complete my homework, and after that about 4 to 5 hours of self study I did to complete everything that was to be covered according to my targets and according to the coaching test schedules. So after like completing your daily targets, what was the one thing which you used to do to relax and chill out? Like while studying, I used to study about 4 to 5 hours in one setting, so to prepare for the because we have to sit for long durations and exam with full concentration and focus, and to practice for that I used to sit for long hours while studying at once, and between those I used to take short breaks of half an hour or 1 hour, and I used to talk with my parents or play some games like chess etc. Okay. तो रिलैक्स करने के लिए तुम ऐसा कुछ मतलब गाने वगैरह सुनना या मूवी देखना ये सब करते थे, या बस पेरेंट्स के साथ बात वगैरह करके यू यूज्ड टू फील रिलैक्स्ड? लाइक पेरेंट्स के साथ बात करना वैसे ही बहुत रिलैक्सिंग होता है, उससे मतलब काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, और इसके अलावा मुझे मूवीज़ वगैरह में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है बचपन से। अच्छा, तो इसलिए। सो व्हाट आर योर हॉबीज अपार्ट फ्रॉम मूवी? मतलब मूवीज नहीं देखते तो उसके अलावा क्या करते हो जब तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए हो, तो क्या करते थे? स्पोर्ट्स में तो चेस और क्रिकेट खेलता हूँ मैं। अच्छा। और अदरवाइज मुझे पढ़ना ही पसंद है, फिर ज़्यादा पढ़ना ही पसंद है, रिलेटेड हो या नॉन कोर्स रिलेटेड, मुझे पढ़ना ही ज़्यादा पसंद। देखो, वेद ने भी अपना आईआईटी का ड्रीम एलन के साथ क्रैक किया था, और अगर आपका भी ड्रीम आईआईटी है तो एलन ऑनलाइन आपके लिए कुछ लेके आया है। अगर आईआईटी आपका ड्रीम है तो एलन ऑनलाइन ने ये ड्रीम अचीव करने के लिए एक नया कोर्स निकाला है, और साथ ही अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और अपनी प्रिपरेशन फुल करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सोचो, आपको कोटा की जेईई की फैकल्टी गाइड कर रही है, वो भी घर से बिना निकले। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो,
किसी एक कंसेप्ट में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत एलन ऑनलाइन के एक्सपर्ट लेक्चर्स से हेल्प ले सकते हो। और ये सिर्फ लेक्चर्स तक लिमिटेड नहीं है, आपको मिलेगा एलन ऑनलाइन का प्रीमियम स्टडी मटेरियल, फुल टेस्ट सीरीज फॉर द एंटायर ईयर, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो लाइक अ टॉपर, हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस बाय कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टीज, 24/7 इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है। मतलब पूरे जेई के प्रिपरेशन का सेटअप एक जगह पे। और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। और इसका नाम है एलन ऑनलाइन जेई सेल्फ स्टडी प्लस कोर्स, जो कि शुरू हो रहा है 27 अप्रैल से। तो अगर आप सच में अपनी जेई के प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो तो अभी के अभी ये कोर्स बाय करो। यू कैन यूज माय कोड RUSH10 ऋषि10 फॉर गेटिंग 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फटाफट जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन है, कोर्स के लिए रजिस्टर करके अच्छे से बढ़ो। तो वेट किस बात का कर रहे हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और रजिस्टर करो इस कोर्स के लिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। पीसीएम में से तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मतलब जेई की प्रिपरेशन करते करते तीनों ही मुझे बहुत अच्छे लगने लग गए थे, लेकिन बाकी वैसे फिजिक्स सबसे ज़्यादा पसंद। फिजिक्स सबसे ज़्यादा पसंद है। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद है? लाइक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, राइट? लाइक फिजिक्स में बहुत अलग अलग टॉपिक्स है, लेकिन एट द एंड तो वो सब एक ही होते हैं। मतलब एक ही इक्वेशन पे बेस्ड है, एक ही लॉ पे बेस्ड है। मतलब अल्टीमेटली सब एक ही बन जाते हैं। ओके। स्टिल ऐसा कोई टॉपिक जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगा फिजिक्स में, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स यूजुअली लोग बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, नहीं, ऐसा तुम्हारे साथ कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो मुझे ऐसा डिफिकल्ट लगा फिजिक्स में, सभी इक्वली थे। अच्छा, सो व्हिच बुक्स यू यूज्ड फॉर योर प्रिपरेशन? जेई बुक्स। मतलब कोचिंग का मटेरियल ही सफिशिएंट होता है, तो वो तो मैंने पूरा सॉल्व किया। और इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स यूज़ की, जैसे फिजिक्स में HCV सॉल्व की थी पूरी। इरोडोव का जितना जेई से रेलिवेंट क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व किए थे, और थोड़ा बहुत पाथफाइंडर के क्वेश्चंस किए थे। मतलब टाइम ज़्यादा मिला नहीं था पाथफाइंडर करने के लिए, लेकिन शुरू में जब टाइम मिलता था तब मैंने पाथफाइंडर भी थोड़ी बहुत सॉल्व करना शुरू की थी। और केमिस्ट्री में फिजिकल में नीरज कुमार सर की बुक यूज़ की थी। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मतलब हमें टीचर्स ने इतना मटेरियल दे दिया था कि और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ओके। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी मतलब कोचिंग से बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलता है, लेकिन उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत मतलब ब्लैक बुक भी सॉल्व की थी रिवीजन के टाइम पे थोड़ी बहुत। अब हम मेनली तो यही किया था। गॉट इट। तुम्हारे 2 साल के प्रिपरेशन में, मतलब इन जनरल लोगों के प्रिपरेशन में ऐसे फेजेस आते हैं कि डीमोटिवेशन सा फेज होता है कि जब उनको कुछ करने का मन नहीं होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ होगा, बट इन केस अगर हुआ हो तो व्हाट थिंग्स यू यूज्ड टू डू ड्यूरिंग सच पीरियड? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। लाइक मैंने बताया, पेरेंट्स वगैरह ने और टीचर्स ने हमेशा मोटिवेटेड रखा, और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि डीमोटिवेटेड फील हुआ। पर फिर भी मतलब अगर किसी रीज़न से डीमोटिवेशन फील होता है, कभी कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो फिर मतलब उसको एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। बस वो तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, उससे सीखना चाहिए और अगले टेस्ट में और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपका आप सच में चाहते हो जेई क्रैक करना, आपका सच में ड्रीम है, तो फिर ऐसा तो कभी फील नहीं होता है कि कभी मतलब मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो जनरली नहीं होता है। सो बेसिकली यू कीप द लर्निंग एटीट्यूड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। कभी अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, राइट? ओके। डू यू यूज टू यूज एनी स्मार्टफोन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? ये स्मार्टफोन था, लाइक उसमें हमारे जो भी क्लास के ग्रुप्स थे, क्लास का पूरा मटेरियल उस पर शेयर होता था। इसके अलावा मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं स्मार्टफोन के। मतलब स्मार्टफोन को पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर ही सकते हो। हाँ, कर सकते हो डेफिनेटली। मतलब it is supposed to be used in that way only, but still due to ongoing social media addiction and other stuff, many a times, in most cases, for student it is considered to be a distracting device. तो तुम्हारे लिए कभी ऐसा हुआ कि यार नहीं, स्मार्टफोन से डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है, ऐसा वगैरह? मेरे साथ तो नहीं हुआ। लाइक मैं सोशल मीडिया पर नहीं था किसी भी प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के अलावा। और मैंने मतलब उससे दूरी बना कर रखी थी। मतलब लाइक आपको पहले से बताओ कि आप इस ऐप को खोलोगे और आपका इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, तो फिर उसे खोलना ही क्यों है? आप अपनी तरफ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रहो। और स्मार्टफोन के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शंस थे तुम्हें? नहीं थे? यू आर कंप्लीटली फोकस। यस। नाइस। सो मतलब मुझे तुमसे बात करके ना ये चीज़ पता चल रही है कि यू आर टू फोकस्ड, एंड तुम्हें मतलब प्रॉब्लम्स तो थी, बट तुम्हें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि यू हैव ओनली वन एटीट्यूड कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। तो
तो वो जो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है वो डेवलप हुआ है टाइम के साथ, या फिर तुम बचपन से ही ऐसे हो? नहीं मतलब मुझे लाइक बचपन से ही पढ़ने में मतलब बहुत पढ़ने में interest था। अच्छा लगता है तो, पढ़ने और में वही करना है बचपन ये से ही सोच अच्छा लिया लगता था। है, हाँ। बट फिर कभी ऐसे डिस्ट्रैक्टेड फील हुआ ही नहीं तुम्हें? नहीं, फिर कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं। लाइक आपका जो फेवरेट काम है, आप फ्री टाइम में आप वो करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे पढ़ना ही पसंद था तो। नाइस। ऐसे कोई यूनिक स्टडी टेक्निक्स थे क्या जो तुम अपनाते थे प्रिपरेशन के टाइम, या बस तुम जो टीचर ने बोला है करने को वो करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, मतलब या फिर कोई टेक्निक्स थे? यही एक्चुअली यूनिक होता है कि जो टीचर ने कहा है आप उसको पूरा सॉल्व करते हो। बच्चे बहुत बार नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि ये टीचर ने बोला है लेकिन रेलेवेंट नहीं लग रहा है उन्हें ऐसा करते वक्त, और वो नहीं करते हैं। पर ऐसे में लाइक ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है। हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इतने सारे बच्चों को इतने ईयर्स के लिए बच्चों को प्रिपरेशन करा चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता होता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑफ कोर्स। तो टीचर्स ने जो कहा मैंने उसे तो पूरा फॉलो किया, और इसके अलावा लाइक उन्होंने जो किया एक्चुअली मैंने सिर्फ वही किया और कुछ नहीं किया। अभी जो एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, जो टॉप रैंक एम कर रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस है तुम्हारे पास कि अगर टॉप में आना तुम्हारा टारगेट हो तो यू शुड डेफिनेटली डू दिस? इज देयर सम काइंड ऑफ थिंग यू वुड लाइक टू से? मतलब आई वुड जस्ट से दैट कि आप आपके टीचर्स जो भी कहते हैं आप उसे फॉलो करते रहो, और रेगुलरली टेस्ट देते रहो। कभी मतलब टेस्ट में कम मार्क्स भी आए तो भी ऐसा टेस्ट स्किप करने का ऐसा मत सोचो, बस उसका रेगुलर एनालिसिस करते रहो और टेस्ट देते रहो, और अपनी मिस्टेक्स पर वर्क करते रहो। धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा और आप भी टॉप रैंक ला सकते हो। ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिवाइज? रिवाइज करने के लिए मैं तो अपने मतलब जब पूरी प्रिपरेशन एंड हो गई थी, लास्ट के जब 5-6 महीने बचे थे एडवांस्ड में, तब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था। और इसमें मैंने एक दो बार पूरे सारे नोट्स रिवाइज किए थे जो भी मैंने इतने 2 साल में बनाए थे, और नोट्स रिवाइज किए थे, और एक बार सारी एनसीईआरटी वापस पढ़ी थी। और जो उस समय मुझे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगे थे या पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, या थोड़ा सा भी अच्छे क्वेश्चंस लगे थे, उन्हें मार्क करके रख लिए थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम, और रिवीजन के टाइम पे एक बार उन सबको सॉल्व किया था। ये जो लास्ट टिप वेद ने बताई ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आई ऑल्सो फॉलोड दिस ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यू कैन मार्क द क्वेश्चंस विच यू थिंक आर वेरी न्यू एज इन जहाँ से तुम्हें कुछ तो नया कंसेप्ट पता चल गया है, एंड टाइम के साथ में ये तुम भूल जाते हो। तो यू रेदर देन सॉल्विंग न्यू बुक्स, सॉल्व सेम बुक्स अगेन एंड अगेन वेर यू हैव मार्क दोज न्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे तुम्हें वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्ट इन हो जाए, राइट? और इसके अलावा कुछ जैसे केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें याद करने का ज़्यादा होता है। तो कभी कभी अगर वो याद नहीं हो रहा हो तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो और उससे हेल्प ले सकते हो। आप मतलब शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आप वो लिखो जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो इम्पॉर्टेंट है और आपको याद नहीं हो पा रहा है। जो आपको याद हो गया उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आपको लगता है कि आप बार बार भूल जाते हो या सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, तो उसको आप वहाँ पर लिख लो और उसको रेगुलरली हर 2-3 दिन में देखते रहो, हर टेस्ट के पहले देखते रहो, तो ओवर टाइम वो सारी चीज़ें भी याद हो जाती है। ओके। और जब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा था उस टाइम पे तुम्हें आइडिया थी कि तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आने वाला है? मतलब सिंगल डिजिट रैंक का तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन ही था। हाँ। मतलब मार्क्स इतने थे, बट AR1 का इतना श्योर 1 के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन सिंगल डिजिट रैंक का तो एक्सपेक्टेशन था। बट जब तुमने एक्चुअल में AR1 देखा तो व्हाट वाज योर फीलिंग? मतलब मैं तो खुश ही था। पेरेंट्स, टीचर्स ये भी खुश होंगे? सब खुश थे, राइट? ओके। एंड इफ यू वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JEE, व्हाट एल्स वुड यू बी डूइंग? I don't know. I never thought about any other option. Okay. So we have completed the JEE segment wala part, and now we have some other type of questions for you. Okay. Your expectation versus reality of IIT now that you have come here? नहीं मतलब बहुत अच्छा है, like more than better than expectations पूरी हो रही है, better than expectation. How's the mess food? नहीं, mess food भी actually बहुत अच्छा है। अच्छा. And what was your first impression of your roommate? रूममेट भी अच्छा है, हेल्पफुल है, मतलब चिल है. एंड बकचोदी तो करी होगी इंस्टी में आने के बाद, तो कुछ ऐसे क्रेजीएस्ट बकचोदी स्टोरी है सुनाने के लिए?
यू आर वेरी लाइक डिसिप्लिन स्टूडेंट, तो ऐसे ये सब से दूर हो तुम. ओके. अभी मतलब सब कुछ एडमिशन प्रोसेसेस वगैरह में इतना बिजी अभी तक ये एक्सपीरियंस अभी होने तक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया. अच्छा. लाइक अभी तक मैं थोड़ा लेट भी आया था, तो एनरोलमेंट वगैरह करने में गॉट इट. बहुत But- टाइम लग गया. You would be doing like, do you wish to do the crazy fun part or you don't wish? देखते हैं देखते जो figure होता है, out करेंगे. देखते हैं. ठीक है. इंस्टी में कोई ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है हॉस्टल में, like चली गई ये हो गया कुछ, या फिर सांप देख लिया चलते चलते? नहीं, हमारे हॉस्टल में नहीं है. H1 students dying in corner. If you could be CEO of any company, which one would you choose? If you could, Be CEO of any company. CEO. we would create our own company. Oh, that's a damn great answer. Thank you so much, Ved, for joining. I hope you enjoyed this video and you got a new experience. And ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारे स्टोरी से. तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. तो बना लिए नोट्स. नाइस. आप एवरेज से बेटर तो बन गए हो, बट अगर आपको बेस्ट बनना हो तो आपको इससे एक्शनेबल स्टेप्स निकालने पड़ेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए. बाय द वे, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं. AIR1 और AIR2 में बस 9 मार्क्स का फर्क था. जस्ट 9. एट दिस लेवल बोथ हैव सेम डेडिकेशन, बोथ हैव सेम इंटेलेक्ट. देन व्हाई कुडंट AIR2 बीट AIR1? That's where things get interesting. You can watch this video to know about it. Bye bye. See you soon.